میں سے باب استفعال کی تفصیلی گردان کو سمجھیں گے اور کچھ قرآنی مثالیں بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باب استفعال کی بنیادی ساخت کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی باب آپ کو سمجھنے کے لیے، اس کی گردان کو یاد رکھنے کے لیے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ پتہ ہوتا ہے تو آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ اس کا واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے استفعل۔ استفعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں فے عین لام کلمہ جو ہوتے ہیں اس کے حقیقی حروف ہوتے ہیں، اس میں کتنے زائد حروف آئے؟ حمزہ آپ دیکھ لیں، سین اور تا، 3 حروف کا اضافہ ہے اصلی حروف کے علاوہ۔ یہ حمزہ جو اس باب میں آتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ استفعال کے پیٹرن میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے، مانگنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے استغفر، استغفر، اس نے مغفرت طلب کی، اس نے بخشش مانگی، اس نے معافی چاہی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی باب میں جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں جو فے عین لام کلمے کے وزن پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ایزی ہے، اس کے جو اضافی الفاظ ہیں وہ سٹارٹ میں الف سین تے آ رہا ہے، جو حروف اصلیہ ہیں وہ تینوں آخر میں ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی روٹ جاننا ہو تو آپ بس آخری 3 ورڈ کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اس میں یہی حروف اصلیہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں استغفر، غین فارا آخر میں، جو 3 لفظ ہیں وہ حروف اصلیہ ہے، اور جو الف سین اور تا ہے وہ اضافی باب استفعال کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب ہم اس کی گردان دیکھیں گے تو ہمیں بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ وہی پیٹرن ہوگا کہ پہلے جو ہے آپ واحد مذکر غائب کے تینوں صیغے، تثنیہ غائب، پھر جمع غائب، پھر اسی طرح مؤنث کے واحد، تثنیہ، جمع کے صیغے دیکھیں گے، اور پھر حاضر کے اور پھر متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ استفعل اور تثنیہ کا استفعلا اور جمع کا استفعلوا۔ مؤنث کے لیے آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں تائے ساکنہ لگانے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ استفعلت۔ تثنیہ کے لیے صرف آخر میں الف لگا کے آپ الف کے اضافے سے تثنیہ کا صیغہ بنا لیتے ہیں، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو۔ اب آپ دیکھیں استفعلتا، اور غائب کا مؤنث کا جو جمع غائب کا صیغہ ہوتا ہے وہ استفعلنا۔ اب حاضر کا واحد مذکر حاضر کا استفعلتا، اور مذکر تثنیہ مذکر حاضر استفعلتما، اور جمع مذکر حاضر استفعلتم۔ اسی طرح سے مؤنث حاضر واحد کے لیے استفعلتی، تثنیہ کے لیے استفعلتما، اور حاضر جمع کے لیے استفعلتن۔ متکلم واحد کے لیے استفعلتو، اور جمع کے لیے استفعلنا۔ اس کے بعد ہم اس کی مضارع معروف کی گردان دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ پیٹرن پتہ چل جائے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یستفعل، یستفعلانی، یستفعلون۔ مؤنث کے لیے تستفعل، تستفعلانی، یستفعلن۔ مذکر حاضر سے شروع کرتے ہیں، تستفعل، تستفعلانی، تستفعلون، اور مؤنث حاضر کے صیغے تستفعلین، تستفعلانی، تستفعلن، اور متکلم واحد متکلم کے لیے ہمیشہ حمزہ کا اضافہ کر دیں گے، استفعل، اور
मुतकल्लम जमा के लिए नून का इजाफा शुरू में कर देते हैं, नस्तफिलु। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुरान करीम में बाब इस्तिफाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, बाब इस्तिफाल की कुरानी आयात में इस्तेमाल की अमली मिसालें जो इस बाब की अहमियत और इस्तेमाल को मज़ीद जो है वो वाज़े करती है। तो अभी देखते हैं कुरान से पहली जो मिसाल है, क़ाला अतस्तब्दिलूना, आ तस तब दिलूना, तस तब दिलूना। आप देखें, पहले आप गौर करें, शुरू में ता आ रहा है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये हाजिर का सीगा है। फिर एंड पे वाव नून आ गया तो हम कहेंगे हाजिर जमा मुजक्कर। अब क्या है, वजन क्या है, अब वजन को आपने उस पे लेके जाना है, तस तब दिलूना, तस तफ इलूना। देखिए तस तफ इलूना इसके वजन पे है, तो तर्जमा क्या होगा, क़ाला उन्होंने कहा, आ क्या, हमजा इस्तिफहामिया है, क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, क्या, तस तब्दिलूना तुम बदलना चाहते हो, तुम तब्दील करना चाहते हो। क़ाला, अब पूरी आयत क्या थी, क़ाला उसने कहा, अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी वो जो, हुआ वो, अदना कमतर है, बिल्लती साथ उसके जो, हुआ खैर जो के बेहतर है। तो सलीस बा मुहावरा क्या तर्जमा होगा, क्या तुम एक हकीर चीज के बदले एक बेहतर चीज को बदलना चाहते हो। आपको पता है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी कौम ने मुतालबा किया था कि हम ये रोज रोज जो है ये मन सलवा खा खा के थक के हैं, हमें तो अब सब्जियां खानी हैं, दालें खानी हैं, प्याज मटर इस टाइप की चीज़ों का उन्होंने मुतालबा किया था। तो हजरत मूसा ने कहा था कि अल्लाह जो बैठे बिठाए तुम्हें रिस्क दे रहा है, तुम उसको छोड़ के ये हकीर चीज़ है जिसके लिए तुम्हें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन को खोदना पड़ेगा, फिर उसमें बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, फिर उसको पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला तो आसमान से रिस्क फेंक रहा है, तुम्हें बगैर मेहनत के मिल रहा है, और तुम एक बेहतरीन चीज़ के बदले एक हकीर चीज़ का मुतालबा कर रहे हो। आगे है दूसरी मिसाल, व इस्तशहिदू शहीदैन, और गवाह बना लो दो गवाह। इस्तशहिदू, इस्तशहिदू। अब यहाँ पे देखें, अमर है, ये फेले अमर है। अब आप देखें फेले अमर कैसे बनता है। असल में फेले अमर जो होता है हमेशा 6 ही सीगे होते हैं, क्योंकि वो हाजिर को आप हुक्म दे सकते हैं, जो मौजूद ही नहीं उसको आप हुक्म नहीं दे सकते। तो फेले अमर के 3 जो होते हैं वो सीगे मुअन्नस के होते हैं और 3 ही मुज़क्कर के होते हैं। और उसका बनाने का तरीका ये होता है कि मुजारे के जो हाजिर वाले सीगे होते हैं उसी में थोड़ी सी तब्दीली करके उसको आप चेंज करके तो फेले अमर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अलामत मुजारे ता को हटा दिया गया है और उसकी जगह शुरू में हमजा लगाया जाता है, और हमजा के एराब सीन के बाद आप देखें सीन पे साकिन है, ता हटा हुआ है, तो तीसरा लफ्ज जो होता है उसके एराब के ताबे होते हैं। अगर तीसरे लफ्ज पे जबर या जेर है तो आपने जेर ही हमजा के नीचे लगानी है। अगर थर्ड लेटर पे पेश है तो फिर आपने पेश, तो यहाँ पे जबर है तो क्या हो जाएगा, इस तशहिदू। अब आखिर वाला नून भी हटा दिया तो क्या बन गया, इस्तशहिदू। वजन क्या है, इस्तफीलू। तो क्या है, गवाह बना लो दो गवाह। अब यहाँ पे तीसरी मिसाल हम देखते हैं, फस्तबशिरु बिबैइकुम, फस्तबशिरु, फा पस
इस्तबशिरू है असल में, ये फ़ेल अमर है, लेकिन जब साथ मिला के लिखते हैं, चूँकि हमज़तुल वसल है, तो हमज़तुल वसल लिखने में तो आता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ड्रॉप हो जाता है, तो डायरेक्ट फ़ा को आपने सीन से जोड़ा। लेकिन अगर आप अलग-अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए बाब इस्तिफ़ाल कैसे है, फ़ा पास इस्तबशिरू, खुश हो जाओ, खुशखबरी तलब कर लो, यानी खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ। बी साथ या पर बैइकुम, उस खरीदो फरोख्त पर, उस सौदे पर। अब यहाँ पे कैसे है इस तबशीरू, असल में फेल अमर मैंने आपको बताया है फेल हाजिर के सीगों से ही बनता है। इलामत मुजारे आपने हटाई, ता हटा दिया, असल में तबशीरून था, आपने इलामत मुजारे हटा के हमजा लगाना होता है, और उसके अलावा थर्ड लेटर के ताबे होते हैं। थर्ड लेटर पे आप देखें ता पे ज़बर है, अगर ज़बर या ज़ेर जो भी हो हमजा के नीचे फिर ज़ेर लगाते हैं। इस तब शिरून था और आखिर का नून ड्रॉप कर दिया, तो इस तब शिरू बन गया। और अब यहाँ पे आप देखें, अब पूरी आयत को देखें, फस्तबशिरू, बस खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, बिबैइकुम, उस सौदे पर, अल्लज़ी, वो जो, बाया तुम बिही, जो किया तुमसे। आगे पूरी आयत नहीं है, अल्लाह ने जो सौदा किया, पूरी आयत इस तरह है। बाब इस्तेफाल के अब अहम नुकात देखते हैं। एक तो क्या इसमें हमज़तुल वसल होता है, बाब इस्तेफाल के शुरू में आने वाला जो, इसको अलिफ का भी नहीं कहते, इसको हमजा कहते हैं, ये हमज़तुल वसल होता है, जो पिछले लेटर को जब आगे इसके साथ मिलाते हैं तो ये गिर जाता है। लिखने में ज़रूर लिखना है, लेकिन पढ़ना नहीं होता इसको। दूसरा, इस बात में तलब के मानी होते हैं, मांगने के, चाहने के मानी होते हैं। जब आप तर्जमा करेंगे तो इन तीन लेटर्स को, तीन अल्फाज को आपने याद रखना है। फिर क्या है, अमर की तश्कील। मुजारे से अमर बनाने में नून और अलामत मुजारे दोनों गिरा दिए जाते हैं, और शुरू में हमजा लगा दिया जाता है, और हमजा का एराब तीसरे लफ्ज के ताबे होता है। अगर उस पे पेश हो तो हमजा पे पेश होगा, वरना अगर उस पे जबर या जेर हो तो हमजा के नीचे जेर ही लगाते हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अरबी ज़बान और कुरान करीम की गहरी समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले जो हम उसकी ज़बान सीखने के लिए कर रहे हैं, आमीन।